Good morning, everyone. We are again back on chapter 6. To do the chapter 6, we are again back. We were doing exercise 6.3 where we were using the criteria of similarity, which were side, angle, or AAA similarity and side side similarity. Yesterday we did questions up to 15 of exercise 6.3, but 14 question was left. So we are starting with that question, 14th question. So your 14th question is, now in two triangles, the two sides and the median, they are given to be proportional, and we have to prove the similarity of the triangles. Yesterday also this question was done, but in that question sides were different. Here the sides are different. Here you are given triangle PQR and ABC. A, this is B, A, C, and triangle PQR. And you are given the median. This is AD, and this is also the median PM. And what is given to you? Sides AB, AC, and median AD. AB, AC, and AD. They are proportional to the sides PQ, PR, and median PM. PQ, PR, and median PM respectively. They are proportional, means their ratios are given to be equal. So this is given to you, and you have to prove the similarity of the triangles. You have to show that triangle ABC, similar triangle PQR. मैम AC upon PR लिखना है, आपने AC upon PM लिख दिया. Sorry, AC upon PR. Yes, AB upon PQ, AC upon PR, and AD upon PM. They are given to be equal, and we have to prove the similarity of these two triangles. तो इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी लाने के लिए हम इस साइड को अब ले नहीं सकते. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में तो हमने कह दिया था कि अगर ये भी साथ में है तो इनके हाफ BD और QM भी साथ में हो जाएंगे, तो हमने इधर वाली ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया था. ठीक है, सिमिलर करके हमने ये एंगल्स इक्वल लिए थे, तो हमारी साइड एंगल साइड से सिमिलैरिटी हुई थी. बट हियर यू आर नॉट गिवन दिस साइड, इंस्टेड यू आर गिवन दिस साइड. तो अब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइड्स और ये साइड्स तो हैं, अगर किसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाए तो हमारी साइड एंगल साइड से सिमिलैरिटी हो जाएगी. अजय, so now your task is to prove that angle A is equal to angle P. उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, D is the midpoint. ठीक है, इससे उसको एक्सटेंड कर रहे हैं. मैं उस मेथड से नहीं कर रही, मैं मेथड चेंज कर रही हूँ. ये जो आप मेथड करवा रही हूँ ना, तो आपने किया हुआ है, ये उससे शॉर्ट पड़ेगा. ठीक है, अभी तक मैं भी उसी से करवाती थी. इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इसके पैरेलल. ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट M वी आर टेकिंग अ लाइन दिस पैरेलल टू PR. लेट दिस पॉइंट इज X and this point is Y. So I have taken DX parallel CA and MY parallel RP. Now we are doing the proof. ठीक है, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ये लाइन अगर मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, व्हाट कैन वी से, क्या कह सकते हैं, as B is midpoint of BC and DX parallel CA. तो क्या लिखो, then X is parallel, X is half of AB. X is midpoint of AB. ठीक है, कौन सी थ्योरम यूज हुई है, कौन सी थ्योरम यूज हुई है, midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. Then by converse of midpoint theorem, we can say
that x is midpoint. अब एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये कैसे हुआ. देखो मैंने ये कहा है that from point, this is the midpoint of this line. ये triangle है, ये midpoint है. From this midpoint I have taken this line dx parallel to CA. ये line मैंने इसके parallel ली है, ठीक है. From the midpoint of one side I have taken the line parallel to the third side. Then the point where it will intersect the opposite side, that will also be the midpoint. ठीक है. आपकी midpoint theorem होती है कि जब आप midpoints को join करते हो, then this line is parallel and half of this side. ठीक है. और converse ये होती है कि आपने एक midpoint लिया, उससे जैसे ही आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे वो सामने वाले को भी बिल्कुल सेंटर में जाके कट करेगी, राइट. सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, दैट इफ दिस इज द मिड पॉइंट, this is a parallel line, in that case x will also be the midpoint. Similarly we can say that y is also the midpoint. Similarly y is, अगर मैं दूसरे वाली ट्राइंगल ले लेती हूँ तो उसमें मेरा y midpoint हो गया. y is the midpoint of q pq. yes, pq. अच्छा, उसके साथ साथ अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गए तो ये वाली लाइन dx क्या हो गई, मीडियन. मीडियन. हाँ मीडियन तो हो गई, बट ये लाइन अगर ये मिड पॉइंट है, आई हैव जॉइंड द मिड पॉइंट्स एंड द लाइन इज पैरेलल, इन दैट केस हमें थर्ड लाइन से पैरेलल हो जाएगी. पैरेलल तो मैंने पहले ही ली है, कंस्ट्रक्शन में ली है. अब मैं कह रही हूँ कि क्या ये इसकी हाफ होगी, क्या Yes, ये ma'am. लाइन Yes ma'am. सॉरी डबल ये Yes, ma'am. इसकी हाफ ये, राइट. Yes इम्प्लाई ma'am. dx is equal to 1/2 AC, या फिर अगर मैं उल्टा लिखूं AC is equal to double of dx and और क्या रह गया, PR वहां पे. सिमिलरली उस ट्राइंगल में भी डबल ऑफ my या ym. ठीक है. मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या करना है, देखो I want to prove that angle A is equal to angle P. मेरे पास ये एंगल इसके इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है. ये एंगल मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है मीडियंस की वजह से. सो आई हैव टेकन द टू एंगल्स टू बी 1 and 2, and here I am taking the angles to be 3 and 4. Instead of proving this angle A is equal to angle P, I have divided the angles and I am going to prove that 1 is equal to 3. फिर हम लिख देंगे similarly 2 is equal to 4. ठीक है. अब 1 is equal to 3 प्रूव करने के लिए I want to prove the congruency, similarity of these two triangles. ठीक है. और इन दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी लाने के लिए मैं रेशियोज इक्वल ला रही हूँ साइड्स के. ठीक है. अब करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. आपके पास ये गिवन है AB अपॉन PQ. इतना समझ में आ गया, इसको ऊपर वाले को इरेज कर दूं. Yes ma'am. चलिए, अब हमें जो गिवन है उससे हम सिर्फ इस ट्राइंगल तक पहुंचेंगे. ठीक है. एक बार दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी मैं सिर्फ इतना इरेज कर रही हूँ. अब मेरे पास ये गिवन है, बट मुझे इससे इस वाले ट्राइंगल तक पहुंचना है, इन छोटी ट्राइंगल्स तक. AB अपॉन PQ, अगर मैं AB की जगह डबल ऑफ AX लिख दूं, AB को डबल ऑफ AX लिख सकते हैं, बिकॉज अभी आपने बोला है दैट X इज द मिड पॉइंट. तो AB को लिख दिया मैंने डबल ऑफ AX. मैं अब इस ट्राइंगल के साइड्स लाना चाह रही हूँ, उसके लिए मुझे AX चाहिए, AB नहीं चाहिए. ठीक है. तो मैंने लिख दिया AX अपॉन PQ. क्या हो गया, डबल ऑफ PY. ठीक है. उसके बाद है AC. मुझे AC नहीं चाहिए, I want to come to this triangle. AC double of dx upon PR is double of my, and dx तक भी पहुंच गए, my तक भी पहुंच गए. AD ये तो इसी ट्राइंगल का है, and PM is also of this triangle. AD upon PM. यहाँ पर 2 से 2 cancel, here also 2 and 2 cancel. So now I have AX upon PY is equal to DX upon MY
ax upon py dx upon my is equal to ad upon is equal to ad upon pm. All the three sides are proportional, and if all the three sides are proportional means I can say that triangle ADX similar triangle PMY by SSS. ठीक है, अब सिमिलर हो गई तो क्या करें, किस लिए किए हमने सिमिलर? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 Yes, CPS. Angle 1 is equals to angle एंगल 3. 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अगर 1 2 के इक्वल आ गया तो सिमिलरली क्या लिख दूं? एंगल 2 Angle 3 equals to angle 4. Similarly, I will write that angle 3 is equal to angle 4. 4. इतना समझ में आ गया? अब इसको कर दो इरेज. Yes, ma'am. चलिए एक बार दोबारा से सुन लो. हमारे पास ये ट्राइंगल्स गिवन है. इन ट्राइंगल्स में आपको ये मीडियन गिवन है. आपके पास एक सिर्फ ये रिजल्ट गिवन है. ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, इस पॉइंट से कंस्ट्रक्शन किया. फ्रॉम दिस पॉइंट डी आई हैव टेकन अ लाइन पैरेलल टू CA. इसी तरह से इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ली है इसके RP के. राइट, नाउ वी आर सेइंग फ्रॉम द मिड पॉइंट इफ वी टेक अ पैरेलल लाइन to the third side of the triangle, then the point where it is intersecting the second side, the other side, that will be the midpoint. By converse of midpoint theorem हमने कह दिया कि ये x midpoint है, इधर से हमने कह दिया y midpoint है. ठीक है, अगर ये midpoints है तो ये line इसकी हाफ हो गई. This is what we have written that, या फिर हम लिख रहे हैं ये इसकी डबल हो गई. AC is double of dx and PR is double of YM. ठीक है, लाइन पैरेलल ड्रॉ करिए यहां से. ये पैरेलल, ये मिड पॉइंट हो गया, और ये इन दोनों का रेशियो आपका 1/2. आपने मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी है. राइट, उसके बाद हम चल रहे हैं जो हमें गिवन है. उस गिवन से हम सिर्फ इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल तक पहुंच रहे हैं. फॉर दैट आई डोंट नीड AB but I need AX. So I have written AB is equal to double of AX and PQ. Similarly PQ भी आपका double of PY हो गया. तो 2 से 2 हो गया कैंसिल. And here AC नहीं चाहिए, मुझे तो DX चाहिए. But I know that AC is equal to double of DX. So at the place of AC we are writing double of DX and PR is equal to double of MY. 2 से 2 कैंसिल. और आपके पास ये जो 3 साइड्स आ गई हैं, these are the 3 sides of these two स्मॉलर ट्राइंगल्स. और जैसे ही 3 साइड्स प्रोपोर्शनल हुई हैं, आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए. और अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए. राइट, नाउ वी आर सेइंग सिमिलरली अगर मैं ये लाइन इधर ना लेके इधर पैरेलल ड्रॉ कर लेती तो मेरा एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल आ जाता. 1 is equal to 3 आया है. मैम वहाँ हाँ जी, सिमिलरली angle 2 is equal to angle 4 implies 1 plus 2 sorry हाँ ठीक है, 1 3 के इक्वल हो गया, 2 4 के इक्वल हो गया. तो क्या लिखूं, 1 plus 2 is equal to 3 plus 4. that implies 1 plus 2 आपका हो गया एंगल A is equal to 3 plus 4 is angle P. अब आप अपनी लास्ट लाइन लिख दो जो आपने प्रूव करनी है. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. AB अपॉन PQ जो आपको गिवन था, कुछ चीजें तो हमें वहीं से मिल रही हैं, इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल्स किससे सिमिलर हो गई आपकी? कौन सी सिमिलैरिटी हुई? साइड एंगल साइड. यस, साइड एंगल साइड. आपकी ये दो साइड्स और ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल, एंड ये वाला एंगल, इन दो के बीच का एंगल इक्वल हो गए. सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड. ठीक है, किसी और ने किया ये क्वेश्चन पहले? मैंने देखा तो था, फिर मुझे लगा कि यस मैम, मैंने भी किया था. इस मेथड से किया था लक्ष्य, या फिर इसमें हम ना क्या करते हैं, एक मेथड और होता है जिसमें आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये मिड पॉइंट है, ये
इसमें हम क्या करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और कितना एक्सटेंड करते हैं, जितना ये है उतना ही इसके इक्वल इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इसमें भी जितना ये है उतना ही ये, फिर इस पॉइंट को करते हैं हम इसे ज्वाइन। जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। ए बी सी दिस इज पी क्यू आर, ठीक है। आपने इसको इसके इक्वल किया, इसको इसके इक्वल किया, जो पॉइंट आ गए आपने उनको थर्ड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, एम को सी से और एन को आर से। पहला स्टेप कंस्ट्रक्शन। दूसरे स्टेप में हम इन दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना कैसे होगी? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। एक तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ADM के इक्वल हो ये जाएगा। साइड इसके इक्वल हो गई, हमने मीडियन चलिए, और मीडियन मीडियन है तो ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स हो गई हमारी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, फिर हम लिख देंगे Reciprocity. ए बी इज इक्वल टू सी एम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू टू आर एन, के इक्वल आ जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। एन अब यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ, ये एंगल 1 2 है, ये एंगल 3 4 है। जैसे हमने उसमें उधर वाले ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की थी, अब आप इन ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी करोगे। ये वाला बड़ा ट्राइंगल और इधर से ये बड़ा ट्राइंगल, सिमिलैरिटी प्रूव करके हम कह देंगे कि 2 4 के इक्वल है, सिमिलरली 1 3 के इक्वल है। अब प्रूव करना जरा इनकी सिमिलैरिटी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। उसके लिए हम जा रहे हैं कि हमें गिवन क्या है। आपको जो गिवन था वो था AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। हाँ जी, ये गिवन था, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये वाले ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल्स तक मुझे AB नहीं चाहिए, यहाँ पर AB है। PQ नहीं चाहिए, यहाँ पर PQ है। बट हाँ, AB को अभी मैंने प्रूव किया है कि इसके इक्वल CM। तो एट द प्लेस ऑफ AB आई कैन राइट CM अपॉन CM. PQ की जगह RN। PQ की जगह हो गया RN, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं AC पर। AC तो चाहिए, यस, AC इज रिक्वायर्ड, सो AC एंड PR दे विल बी एज इट इज। AD नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पूरी ट्राइंगल से पूरी साइड चाहिए। तो AD की टर्म्स में मैं AM तक कैसे पहुंचू? AD और DM तो इक्वल। AD और इधर है मेरे पास PM, ठीक है। मुझे AD नहीं चाहिए, आई वॉन्ट AM। तो क्या मैं इस साइड का डबल करके लिख सकती हूँ? ऊपर Double नीचे of दोनों को AD. मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशियो तो फिर भी सेम रहेगा, ठीक है। मैंने उधर लास्ट वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। नाउ आई एम राइटिंग डबल ऑफ AD इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, AM। तो AD का डबल होगा AM और सॉरी AM। इसको फिर आप आपकी वॉइस समझ सॉरी, हाँ जी, इधर से आ गया, इधर से आपका आ जाएगा PN, ठीक है। आपकी ये दो साइड्स और ये तीसरी साइड, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए आपके सिमिलर बाय ऐसे। और अगर सिमिलर तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4, सिमिलरली 1 इज इक्वल टू 3, ठीक। तो आपका पूरा एंगल एंगल P के इक्वल हो गया, राइट। फिर आप कर दो सिमिलैरिटी कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो तो गिवन है हमें, ठीक है। और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, सो द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सा दोनों सॉल्यूशन लेंदी है? पहले वाला इजी था या ये वाला? हम दोनों ही लेंदी हैं थोड़े। हाँ, लेंदी तो है, बस कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, उसमें थोड़ी सी मिक्सिंग। पिछले वाला आसान था। हाँ जी, पिछले वाला आसान था। अच्छा चलो, जो जिसको ठीक लगे ना उससे कर लेना। इसमें कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी, वहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, last question of the exercise. If AD and PM are the medians of the triangle ABC and PQR, अभी तक हम कर रहे थे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा, साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं।
नाउ वी आर सेइंग अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स के साथ साथ उनकी मीडियंस भी प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, यू आर गिवन जो हाँ जी क्या कह रहे हो? ये वाला रिजल्ट हमारी अगली एक्सरसाइज में यूज होगा। These two are the medians respectively. A, B, C and PQR. These are given similar. A, B, C, similar triangle PQR. ठीक है? And you have to show that AB upon PQ is equal to AD upon PM. इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो, इनके रेशियोज के भी इक्वल है, मीडियंस के भी इक्वल है। आपने मीडियन को बीच में लेकर आना है। अगर मीडियंस को बीच में लेकर आना है दैट मींस कौन सी दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी? Triangle ABD and triangle PQM. Yes, we will have to take PQ PM given है, so PQ PM और AB AD AB AD। तो हमारे पास बात हो रही है इन दो ट्राइंगल्स की। अगर मेरे पास ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं देन आई कैन से दैट द रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, अब इनकी सिमिलैरिटी तक पहुंचने के लिए आपके पास बड़े वाले ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी है। अगर बड़े वाली ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then we can say that angle, मुझे अंदर वाले ट्राइंगल तक पहुंचना है। अंदर वाले ट्राइंगल का एंगल B क्या Q के इक्वल होगा? Yes. By CPST. Also sides will be proportional, so I can say AB upon PQ is equal to BC upon QR. मैं तीसरे तक नहीं जा रही because I don't want that side. I have to stick myself to these two triangles, right? So ये कुछ पार्ट BC का आ रहा है। ठीक है, तो मैंने BC ले ली क्योंकि बड़े वाली ट्राइंगल थी, इसमें मुझे AB अपॉन PQ के साथ BC अपॉन QR लेना पड़ा, राइट? अगले स्टेप में बता दो अब आप क्या करूं? AB by PQ is equal to twice BD by twice QM. बिल्कुल ठीक है। BC you can write as twice BD and double of BD and QR can be Twice written of QM. Twice of 2 से 2 QM. cancel. 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास एक ये रिजल्ट हो गया और एक रिजल्ट ये हो गया। तीन चीजों से आपकी क्या हो गई? सिमिलर हो गई ट्राइंगल। ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय S साइड एंगल। S side. ठीक है, अब अगर सिमिलर हो गई तो क्या लिखूं? Their sides are proportional. AB by PQ is equal to AD by P. बिल्कुल ठीक है, AB upon PQ is equal to AD upon PM hence proved। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको आधा तो जो प्रूफ होता है ना वो टू प्रूव को देख के पता चल जाता है कि आपने इससे डिसाइड करना है कि आप इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उससे आप उल्टा सोचना शुरू करो कि अच्छा इसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, फिर तो सिमिलैरिटी चाहिए होगी। सिमिलैरिटी करने के लिए क्या क्या इक्वल है और क्या क्या मुझे लेके आना है, फिर गिवन में जाते हैं कि वहां से क्या यूज हो सकता है। ठीक है, सो दिस वे वी डू दिस चैप्टर। अब इस रिजल्ट को याद रखना कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स तो प्रोपोर्शनल होती हैं, उसके साथ साथ उसकी मीडियंस भी प्रोपोर्शनल होती हैं। सिमिलरली उनके ऑल्टीट्यूड्स भी आपको प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने आज करना है, that you are given two triangles to be similar and you have to prove that they are the sides are proportional to their altitudes also। ठीक है, चलिए अब इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अगला स्टार्ट करवा रही हूँ जिसमें हमारा एक रिजल्ट यूज होना है जो है एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम तो नहीं है आपके सिलेबस में बट इट्स रिजल्ट वी हैव टू यूज। वी आर सेइंग ABC और ये है PQR। चलो इसको मैं थोड़ा सा प्रूफ आपको अलग तरीके से जल्दी से करवा देती हूँ। इसका प्रूफ ये है कि अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का रेशियो
इनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। जैसे आपका हम कहते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं अगर ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं, बट जब आप एरिया ले रहे हो तो आपको इनके स्क्वायर लेने पड़ेंगे। ठीक है, जस्ट लेट मी रिफ्रेश माय सिस्टम। हाँ जी, ठीक है, ये हमारा है एरिया थ्योरम। अब एरिया थ्योरम को अगर मैं प्रूव तो बता सकते हैं कि एबीसी का एरिया किसके इक्वल होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इज बीसी, हाइट गिवन नहीं है तो हाइट लगा लो निकालो 8 एडी, और यहाँ AD से ले लो आप पीएम। ठीक है, PM इंटू बीसी इंटू एडी, और दूसरा मुझे लेना है ट्राइंगल पी क्यू आर। This will also be 1/2 into base means QR QR and height means PM। ठीक है, मुझे चाहिए था रेशियो, तो रेशियो चाहिए तो दोनों को कर दो डिवाइड। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, राइट। अब ये रह गया आपके पास BC अपॉन QR इज मल्टीप्लाई AD अपॉन PM। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बोला है कि आपने प्रूव करना है, वो क्या रिजल्ट बोला है? की साइड्स और ऑल्टीट्यूड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो वही रिजल्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ये साइड्स हैं BC अपॉन QR और ये ऑल्टीट्यूड है AD अपॉन PM। हम कह रहे हैं कि ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल है, जो आप प्रूव करोगे, राइट। तो क्या मैं इसकी जगह पे E से ही लिख दूं? हाँ, ठीक है, तो ये हो गया BC अपॉन QR मल्टीप्लाई BC अपॉन QR, दैट मींस इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ठीक है, अब साइड का अगर इक्वल आ गया तो ये सारे तो आपस में इक्वल हैं ही सही। BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन P, तो इसकी जगह AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी आ जाएगा, और सिमिलरली आपका तीसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपने यूज करना है। अब इसमें से ये थ्योरम तो हट गई है, बट इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपका इस पे बेस्ड सीधा सीधा आ जाता है, दैट यू आर गिवन द एरियाज एंड यू हैव टू टेल द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, या साइड्स का रेशियो गिवन है, एरियाज का रेशियो बताना है। फॉर एग्जांपल, यू आर गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, दे आर सिमिलर ABC and other triangle is DEF, and they are saying their areas are 64 and here area is 121 and EF is 15.4. This is 15.4 and we have to find out the value of BC. बता सकते हो? I don't want the result from Lakshya and Arpit only. Whole class is here. अछाया कहाँ है? चेतना, भाविका तो बिल्कुल ही नजर आनी बंद हो गई है। हर्षित भी गुम हो गया। अंश आपने भी बोलना कम कर दिया है। जल्दी बोलो, what will be the answer? What will be the value of BC? देवांशी बोलो। आर्यन पढ़ रहे हो? आर्यन शेरावत। लावण्या, आप भी बोलते थे, बोलते ही नहीं हो। मुस्कान, रिद्धि, सारे बैठे हैं बट बोलना किसी ने नहीं है। चलो जल्दी बताओ, नहीं हुए तो भी बता दो, सो दैट आई कैन डू। मैं बताऊं? बता दो।
मैम वही मैम जो सबसे पहले तो एरिया थ्योरम अप्लाई करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे कि जो एरिया एबीसी का है अपॉन डी है वो बीसी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे बीसी और ई एफ उसके ही बाद गिवन वैल्यूज है तो मैं गिवन। इनको यूज करूंगी। एरिया ऑफ मैम और आगे आंसर 11.2 है मेरा। 11.2। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी चेतना का तो आ गया, लक्ष्य का भी आ गया, शौर्य कहाँ है आज? मैंने हुआ है हम्म, मैंने चैट में लिख दिया आंसर। अच्छा हाँ ठीक है, लिखा हुआ है आपका 11.2। I'm 11.2. भाविका मैडम, यू हैव आल्सो शोन योर प्रेजेंस। मुझे लगता है जब करने शौर्य वाले नहीं क्लास क्वेश्चंस में होते हैं ना तब भाविका आती है, जब थ्योरम्स होते हैं तो भाविका नहीं बोलती है। चलिए, you are given the result. ABC area is 64 and DEF area is 121. BC have to find out. We'll keep it as it is. ER is 15.24 and it's square. आप सीधा स्क्वायर यहाँ से इधर क्योंकि रूट लेने easy है। जैसे ही यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इनके हो गए रूट्स। You will get root of 64 is 88 and 121 root is 11 and BC और 15.4 को अगर आप इधर लेकर आएंगे you will get it in multiplication is equal to BC। कर दो और इसको आप कैंसिल करो। हाँ जी, सबका आंसर आ गया ना? सबका आंसर? मैम हाँ जी, हमें वो फॉर्म्स पे साइन करने का बना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स पे। वो अभी बेटा बुला लेंगे, 1-2 दिन तक आपको बुलाएंगे। पीछे सर्वर हैंग हो गया था, काफी प्रॉब्लम हो गई थी, साइट सीबीएसई में गड़बड़ हो गई थी। So they have given us few more days to complete this task. So we don't have to do मैम और क्वेश्चन करोगे?